یقیناً ہماری خوشی آج اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ہم سب کرسمس سیزن میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ سیزن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر روز کرسمس کی فیلنگز آنا اور خوشی اور مہمانوں کا آنا جانا، اور سب سے بڑھ کر چرچ کا حصہ ہوتے ہوئے کرسمس کی پروگرام کی جو تیاریاں ہوتی ہیں وہ علیحدہ سے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے۔ سو یقیناً ہم کرسمس کی سیریز کا ہی آغاز کرنے والے ہیں، جس میں رینڈملی کچھ سرمنز میں کروں گی اور کچھ فرحان صاحب کریں گے۔ سو آج جو کرسمس کے حوالے سے ہمارا آج پہلا جو سرمن ہوگا، پہلا جو کلام ہوگا، وہ ہوگا کیا تجسم ضروری تھا؟ تجسم جو ہے مسیح یسوع کا مجسم ہونا، اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تجسم، کلام کا مجسم ہونا، خدا کا انسان بن کر پیدا ہونا، اس کے لیے انگلش زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے انکارنیشن۔ تو ہمارا آج کا کلام کا جو عنوان ہے وہ ہے کیا تجسم ضروری تھا؟ کیونکہ ہم مسیحی ہیں تو ہمارے لیے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ میرے اور آپ کے لیے تجسم کی یعنی کلام کے مجسم ہونے کی کیا اہمیت ہے۔ محمد علی باکسر تھے، بہت بڑے، شاید آپ لوگوں نے ان کا ذکر سنا ہو یا کبھی ان کو دیکھا ہو۔ ایک دفعہ ان کی ملاقات خدا کے عظیم خادم ایڈرین روجر کے ساتھ ہوئی، تو انہوں نے ایڈرین روجر سے کہا کیا آپ یسوع کو خدا کا بیٹا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، یا وہ اتنی عجیب طریقے کی پیدائش کا حصہ ہے اس لیے آپ اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں؟ تو ایڈرین روجر نے ان سے کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں، ہم یسوع مسیح کو اس لیے خدا کا بیٹا نہیں کہتے کیونکہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، بلکہ وہ کنواری سے اس لیے پیدا ہوا کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور بڑا ضروری ہے یہ جاننا کہ خدا کا بیٹا ایک کنواری سے پیدا ہوا۔ سو آج تھیولوجیکلی، آج گڈ لائف چرچ تھوڑا سا تھیولوجیکلی سیکھے گا کہ خدا کے کلام کا مجسم ہونا کیا تھا، اس سارے کے بیچ پروسیس کیا تھا، اور اس کی میری زندگی میں میری نجات کے لیے کیا اہمیت ہے۔ یقیناً یسوع مسیح کی پیدائش ایک مخلوق الفطرت قدرتی عمل ہے۔ عام انسان اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا، کیا واقعی میں یہ ایک حقیقت ہے، ایسا ہو سکتا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی کنواری سے ایک بیٹا پیدا ہو؟ تو میرے عزیزو، یقیناً میں نے کہا یہ غیر یقینی عمل ہے، ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا معجزہ ہے جو عام انسان سمجھ نہیں سکتا۔ جب مریم کے پاس فرشتہ آیا تو مریم نے اس فرشتہ سے کہا کہ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو فرشتہ نے اس سے کہا کہ جو قول خداوند کے منہ سے نکلا ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ خدا نے، فرشتہ نے اس مریم کو یہ بات واضح کی کہ جو بات خدا کے منہ سے نکلتی ہے یا جو کلام میں تیرے پاس لے کر آیا ہوں اس میں اثر ہے اور وہ عمل کرے گا۔ اور مریم نے کہا کہ دیکھ میں خدا کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے قول کے موافق ہوں۔ اب یسوع مسیح کا ایک کنواری سے پیدا ہونا، سوری میرا گلا تھوڑا سا خراب ہے اور تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو سکتی ہے۔ یسوع مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا، ایک سپر نیچرل برتھ ہونا، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، وہ کسی انسان کی تصدیق کا محتاج نہیں ہے۔ خدا کی قدرت کا کام کرنا، خدا کے معجزات کا ہونا کسی بھی انسان کی تصدیق کے محتاج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں اس بات کو ویلڈ نہیں مانتا، تو ہم کہیں گے اگر وہ نہیں ماننا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی گڑبڑی ہو۔ تو میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ایک غیر یقینی کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ معجزات کا خدا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ الہیم ہے، وہ حاکم ہے، وہ حاکم کل ہے، وہ پیدا کرنے والا خدا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آتی، مثال کے طور پر ہمیں اگر بہت سی چیزیں نہیں سمجھ آتی تو کیا ہم ان کا یقین نہیں کرتے؟ جیسے بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں، اکثر تو کہتے ہیں کہ جو بھینس ہے وہ کالی ہوتی ہے اور وہ ہری گھاس کھاتی ہے اور وہ سفید دودھ دیتی ہے، اور اس دودھ کا مکھن جو ہوتا ہے وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ سو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن کیا ہم دودھ استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم مکھن بھی استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ بجلی کس طرح کام کرتی ہے۔ ہم میں سے جاوید بھائی جانتے ہوں گے یا جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، مجھے بھی نہیں یاد کہ کس طرح سے بجلی کام کرتی ہے۔ آخر جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو اس کے اندر سارا کیا پروسیس ہوتا ہے کہ پنکھا آن ہو جاتا ہے یا لائٹس آن ہو جاتی ہیں یا ہمارا ٹی وی
ऑन हो जाता है? अगर आपको नहीं पता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप घर के पंखे नहीं ऑन करते, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है तो मैं पंखा नहीं ऑन करूंगा। ये ऐसा नहीं होता कि आप कहते हैं कि मैं घर में लाइट्स ऑन नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि बिजली कैसे काम करती है। सो आप उन सहूलियात को अपनी जिंदगी में तजर्बा करते हैं, बेशक आपको समझ आए या ना आए। सो एक आम ईमानदार अगर नहीं समझ पाता कि तजस्सुम क्या है, कलाम का मुजस्सम होना क्या है, तो कम से कम वो ईमान के वसीला से उसका फायदा जरूर उठा सकता है, और ये है कि वो निजात पाए। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे कि आज हम तजस्सुम को सीखें। आज हम जानें कि क्या मतलब है कलाम का मुजस्सम होना, क्या मतलब है खुदा का इंसान बनकर पैदा हुआ। मेरे अजीजों, साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, हमें जानते हैं कि साइंस के बहुत से कवानीन हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है, और इसके बाद के लॉज मुझे पता नहीं, और भी बहुत से होंगे। सो इतने कवानीन के बावजूद मैं एक चीज आप पर वाज़ेह कर दूं, साइंस के जितने भी कानून हैं, साइंस के जितने भी लॉज हैं, आपका खुदा उन कानूनों के लिए बाउंड नहीं है। आपका खुदा उन कानूनों के लिए बाउंड नहीं है। अब जिस साइंस को खुदा ने पैदा किया वो साइंस कहती है कि खुदा का वजूद ही नहीं। जिस कवानीन को खुदा ने जमीन पर मेरी और आपकी सहूलत के लिए रखा, उस साइंस को पढ़ते हुए आज लोग कहते हैं कि खुदा का वजूद नहीं है। ये सब हादसाती तौर पर हो गया। तो क्या आपका ज़हन और आपका दिल मानता है कि इतनी पूरी और बड़ी और इतनी खूबसूरत कायनात बगैर किसी हस्ती के खुद से वजूद में आ सकती है? हरगिज़ नहीं। इसका जो निज़ाम है, इसकी जो तरतीब है, और जिस तरह से चीजें अपनी तरतीब से काम कर रही हैं, यकीनन पीछे कोई मुंतज़म है जो इन सब चीजों का इंतजाम कर रहा है, और यकीनन वो मेरा और आपका यहोवा है। हालेलुया। अब बात यह है कि जितने भी कवानीन है, मैंने कहा हमारा खुदा उन कवानीन के लिए बाउंड नहीं है। आपके यीशु ने जब जमीन पर जिंदगी गुजारी तो साइंस के सारे कवानीन को तोड़ दिया। उसने केमिस्ट्री के कानून को तोड़ा जब उसने पानी को मैं में बदल दिया। उसने लॉ ऑफ ग्रेविटी को तोड़ दिया जब वो जिंदा आसमान पर उठाया गया। और उसने साइंस के सबसे बड़े कानून को जब 4 दिनों के मुर्दा लाजर को जिंदा किया तो साइंस के सबसे बड़े कानून को मैंने कहा कि आपका खुदा साइंस के किसी भी कानून के लिए बाउंड नहीं है। यीशु ने कहा इब्ने आदम सफर का भी मालिक है, वो मेरा और आपका भी मालिक है, और अपने हाथ से बनाई हुई हर एक चीज का यीशु मालिक है। सो साइंस ये बात नहीं कह सकती कि अगर हमें नहीं समझ आ रहा तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा खुदा मफूतुल फितरत कुदरत का मालिक खुदा है। अब अगर कोई शख्स कहे कि मुझे समझ नहीं आती कि तजस्सुम क्या है, मुझे समझ नहीं आती कि कलाम का मुजस्सम होना क्या है, तो मेरे अज़ीज़ों मैं एक बात बता दूं, उस शख्स ने खुदा को बहुत छोटा पाया है। उसने खुदा की कुदरत को बहुत छोटा जाना है। अभी तक वो खुदा की जात से वाकिफ नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा कि उसका खुदा कुछ भी करने की कुदरत रखता है। और खुदा के तजस्सुम से, यीशु के मुजस्सम होने से, कलाम के मुजस्सम होने से कायनात में एक बड़ी खूबसूरत चीज हुई, और वो ये थी कि मखलूक ने अपने खालिक को देख लिया। मखलूक ने अपने खालिक को देख लिया था। वो इंसान जो खुदा को रूबरू नहीं देख सकता था, आज लोग उसको चन्नी में पड़ा देख रहे हैं। वो यीशु जिसको कभी फरिश्ता ने नहीं देखा, यशायाह नबी का सहीफा पढ़े तो लिखा है कि वो दूर से अपने परों से अपना मुंह ढांकते हैं क्योंकि वो उसे देख नहीं सकते, दूर से अपने पैर ढांकते हैं क्योंकि वो जानते हैं खुदा पाक है, और दूर से बोलते हैं और उसकी तमजीद करते हैं। वो फरिश्ते जिन्होंने कई सदियों से अपने खालिक को नहीं देखा था, आज वो फरिश्ते खुशी से पागल हैं। वो हर एक इंसान के पास जाते हैं, वो गडरियों के पास जाते हैं और उनको पैगाम देते हैं कि मैं तुम्हें खुशी की एक बशारत देने आया हूँ, और वो ये है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आज वो फरिश्ते उस खुदा को खुद से देख सकते हैं जिस खुदा को वो कभी देख नहीं सकते थे। क्या तजस्सुम एक अजीम मौजज़ा नहीं है? यकीनन वो एक अजीम मौजज़ा है जिसके वसीला से मैं और आप आज निजात याफ्ता हैं। ये तजस्सुम है जिसके बायस इंसानियत की बहाली का, इंसानियत के गुनाह से कफारे का काम पूरा हो सका। ये कलाम का मुजस्सम होना है जिसके बायस मैं और आप आज अपने आप को गुनाहों से आजाद महसूस करते हैं। ईमान के वसीला से हम इस बात को बड़ी आसानी से कबूल
कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी बात की वजह हमें पता हो कि तजस्सुम क्यों हुआ, और मैंने कहा कि हमारे आज के कलाम का अनुमान है क्या तजस्सुम जरूरी था। तो मैं आपको मेरे से एक बात बता दूं, तजस्सुम के पीछे की बड़ी बुनियादी वजह मेरी और आपकी निजात थी। तजस्सुम के पीछे, कलाम के मुजस्सम होने के पीछे, इनकारनेशन के पीछे, खुदा का इंसान बनकर पैदा होने के पीछे सबसे बड़ी और आम वजह क्या थी? मेरी और आपकी निजात थी। बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब पैदाइश की किताब के पहले चंद अब्वाब का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि खुदा ने बाग़ अदन बनाया, उसमें आदम और हवा को रखा और खुदा ने उनको इख्तियारात दिए, खुदा ने उनको डोमिनियन दी। खुदा ने उनको कहा कि ये सारा कुछ आपका है, पलो बढ़ो और जमीन को मामूलो महकूम करो। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि उन्होंने नाफरमानी की और उनकी नाफरमानी के बायस वो इख्तियारात उनसे छिन गए, और वही इख्तियारात जो खुदा ने आदम को दिए थे वो इख्तियारात अब इब्लीस के पास चले गए। अब वो खुदा के खादमीन नहीं रहे, बल्कि अब वो दोनों इब्लीस के गुलाम बन चुके थे गुनाह की वजह से। और यकीनन आदम के इस नाफरमानी के बाद सिर्फ आदम ही नहीं, आने वाली तमाम नस्लें भी गुनाह में गिरी। सारी इंसानियत में गुनाह का वायरस फैला और हर एक इंसान जो इस जमीन पर पैदा होता है वो मानूसी तौर पर गुनहगार है। और खुदा का, मैंने कहा, कलाम को मुजस्सम करने के पीछे बड़ा अहम एक रोल था, एक अहम काम था, एक मकसद था, और वो था इंसानियत को गुनाह से बचाना। खुदा चाहता था, क्योंकि खुदा की सिफात को अगर हम पढ़ें तो खुदा की एक सिफत है कि वो मुनसिफ है। खुदा की सिफत है कि वो मुनसिफ है। खुदा का एक नाम है एलोहीम, जिसका मतलब है, जिसके मतलबों में से एक मतलब है कि खुदा मुनसिफ है। और मुनसिफ से मुराद, खुदा कहता है कि मैं अपना जलाल किसी और के लिए रवा ना रखूंगा, और जमीन पर होने वाला हर एक गुनाह खुदा के जलाल के खिलाफ है। तो जितने गुनाह हुए खुदा उनको कबूल नहीं कर सकता, खुदा ऐसे ही किसी को माफ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा मुनसिफ का खुदा है, खुदा इंसाफ का खुदा है, खुदा मुनसिफ है, वो किसी को ऐसे ही गुनाह माफ नहीं कर सकता। इंसाफ होना जरूरी है। और मैंने कहा कि खुदा मुनसिफ होने के साथ साथ खुदा मोहब्बत भी है, खुदा मोहब्बत भी है, शफकत भी है, वो इंसानों को बचाना भी चाहता है। सो खुदा कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे इंसानों के गुनाहों का कफारा हो, गुनाह का कर्ज अदा हो, लेकिन इंसानों को महफूज भी किया जा सके। वो गुनाह जो आदम ने किया, वो इख्तियारात जो आदम ने खो दिए थे, फिर से वो इख्तियारात इंसान को वापस दिलाने के लिए खुदा को एक काम करना जरूरी था। खुदा को एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना जरूरी था ताकि इंसानियत को फिर से बहाल कर सके। और यकीनन पौलुस रसूल यहाँ पर जिक्र करते हैं पहले आदम का और आखिरी आदम का। पहला आदम वो जो बाग़ अदन में जिसने गुनाह किया, और दूसरा यानी आखिरी आदम हमारा यीशु मसीह है, जिसने आकर मुझे और आपको बहाल किया, जिसने कलाम के तौर पर मुजस्सम होकर जमीन पर एक इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारी। अब यीशु मसीह को क्या जरूरत थी कि वो इंसान बनकर जमीन पर पैदा हो गए। बाइबल मुकद्दस में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 6वां बाब उसकी 23वें आयत में लिखा है कि जो गुनाह है उसकी मजदूरी क्या है? मौत है। आप हिजकिय्याह का सहीफा उसके 18वें बाब की 20वीं आयत पढ़े तो लिखा है जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। अब इब्रानियों 9वें बाब की 22वीं आयत पढ़े तो वहाँ लिखा है कि खून बहाए बगैर खुलासी नहीं है। इसका मतलब है जो गुनाह हो चुके हैं उन गुनाहों को खत्म करने के लिए, जो नाफरमानी हो चुकी थी उसको खत्म करने के लिए किसी न किसी का खून बहना जरूरी है, लहू बहना जरूरी है, किसी का मरना जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं मरते तो फिर कोई ना कोई तो हमारे हिस्से का मरता ताकि मैं और आप निजात पाते। और खुदा इंसानियत को महफूज करना चाहता था, और खुदा ने गुनाह के कफारा के लिए जो कुर्बानी रखी थी वो कामिल कुर्बानी की रिक्वायरमेंट है। इसका हमें कैसे पता चलता है? पुराने अहदनामे में जो कफारे की कुर्बानी होती थी उसके लिए बर्रा कामिल होना बड़ा जरूरी था, बर्रे का बेऐब होना बड़ा जरूरी था। जब इस्राएली कुर्बानी करने के लिए आते थे वहां पर बैतलहम में, तो क्या होता था, यरूशलेम में जब लेकर आते थे अपने बर्रे, तो उन बर्रों को चेक करवाया जाता था कि इनके अंदर कोई नुक्स तो नहीं है। उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता, जब उनमें कोई नुक्स नहीं होते, जब वो बेऐब होते, फिर वो कुर्बानी के लिए दिए जाते। और बेऐब होने का और बिना किसी नुक्स के होने का यकीनन यीशु मसीह के कामिल होने की तस्वीर पेश करते थे। और यकीनन इसी बात को देखते हुए यूहन्ना सबाकी ने यीशु की तरफ देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। लेकिन मैंने कहा कि खुदा इंसानियत को महफूज करना चाहता था, और
अगर कुर्बानी देता, क्योंकि खून बहना जरूरी है, किसी का मरना जरूरी है, तो अगर इंसानों में से किसी इंसान को खुदा चुनता तो वो कभी भी इस काबिल ना होता कि वो किसी के गुनाहों का कफारा दे सकता। क्यों? क्योंकि पौलुस कहते हैं कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। सबने गुनाह किया, हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो कहे कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। जब गुनाह है तो इसका मतलब है कि वो अजीम कफारे के लिए काबिल नहीं है। सो इंसान तो इंसानियत का कफारा नहीं दे सकता था, सब गुनहगार हैं। और दूसरी जानिब खुदा है जो इंसानों को बचाना चाहता है, लेकिन खुदा अपनी अलूहियत में, अपनी अब्दियत में रह के, अब खुदा को मौत नहीं आ सकती, खुदा को मौत नहीं, तो खुदा अपनी अलूहियत में रहते हुए कुर्बानी नहीं दे सकता। फिर खुदा रूह है। यीशु ने ये बात सामरी औरत पर ये भेद खोला कि खुदा क्या है? रूह है। इसका मतलब खुदा का खून और गोश्त नहीं है। सो खुदा मेरी और आपकी कुर्बानी नहीं दे सकता। सो दोनों केसेस में इंसानियत मरने को ही थी, दोनों केसेस में इंसान के गुनाहों का कफारा मुमकिन नहीं था। इधर खुदा है जो इंसान को बचाना चाहता है, लेकिन खुदा का खून और गोश्त नहीं है। खुदा रूह है, अब्दियत में है, अलूहियत में है। दूसरी जानिब इंसान है जो शायद कामिल इंसान तो है, खून और गोश्त है, लेकिन उसके अंदर गुनाह है। सो खुदा और इंसान अपनी अपनी जगह पर रहकर पूरी इंसानियत को गुनाह से बचा नहीं सकते थे। सो खुदा को एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करना थी जिसके बायस कुछ ऐसा मुमकिन होता कि इंसान के गुनाहों का कफारा हो सकता। सो खुदा ने क्या किया? खुदा ने अपना कलाम अपने फरिश्ता के वसीला से मरियम के पास भेजा और मरियम ने उस कलाम को कबूल किया और रूह कुदस ने उस कलाम को वजूद दिया और मेरे और आपके लिए कामिल इंसान पैदा हुआ, यीशु, जो मेरे और आपके लिए कामिल बर्रा है। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि आदम के गुनाह के बायस उसके अख्तियारात छीन चुके थे। उन अख्तियारात को वापस लाने के लिए एक आदम का होना जरूरी था। अगर यीशु मसीह आम कपल से पैदा होते, एक इंसानी कपल से पैदा होते, तो फिर यीशु मसीह मेरी और आपकी तरह होते, फिर वो हमारे गुनाहों का कफारा नहीं दे सकते। ये मुमकिन नहीं था कि वो हमारे गुनाहों का कफारा देते। और खुदा का मकसद क्या था? कि पूरी इंसानियत को गुनाहों से बचाया जाए, पूरी इंसानियत को गुनाहों से आजाद किया जाए, और ये इंसान कर नहीं सकता था। सो वहां पर जो लफ्ज आता है वो है तजस्सुम, वो है इनकारनेशन, जिसको खुदा ने मुमकिन किया ताकि मेरे और आपके गुनाहों का कफारा हो सके। अब यीशु मसीह जमीन पर एक कुंवारी से पैदा होते हैं और खुदा के कलाम के वसीला से वो मरियम की कोख में पलते हैं, और मैंने कहा रूह कुदस ने उनको जिस्म बख्शा और वो एक इंसान बनकर पैदा हुए, और मेरे और आपके गुनाहों का ये उसका मुजस्सम होना है जिसने मुझे और आपको गुनाहों से कफारा दिया। सो जो तजस्सुम है, कलाम का मुजस्सम होना है, खुदा का इंसान बनकर पैदा होना, ये तीनों एक ही चीज है। सो मैं जो भी वर्ड बोलूं आप अंडरस्टैंड करें कि तजस्सुम का मतलब क्या है? कलाम का मुजस्सम होना या खुदा का इंसान बनकर पैदा होना। सो दोनों केसेस में खुदा के पास एक कंडीशन थी और वो ये थी, कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर गुनाह ना हो, जो कामिल हो, और वो इंसान तो हो नहीं सकता था, वो खुदा ही मुमकिन था। जब लोहियत के खानदान में ये फैसला किया गया कि यीशु जाएगा और इंसानियत के लिए कफारा देगा, तो यीशु किसी मर्द के वसीला से नहीं बल्कि रूह कुदस की कुदरत से पैदा होगा, और वह एक कुंवारी से पैदा होगा ताकि वो कामिल शख्सियत के साथ पूरी इंसानियत के लिए गुनाहों का कफारा दे सके। अब यीशु मसीह के मुजस्सम होने में हम लोग एक आगे आने वाले सर्मन में सीखेंगे कि यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो अपनी बहुत सी क्वालिटीज, अपनी बहुत सी सिफात आसमान पर छोड़ के। आपको पता है यीशु मसीह के बारे में पौलुस कहते हैं कि अगर जब वो खुदा की सूरत पर था उसे उसने अपने कब्जा में रखने की चीज ना समझा। यीशु जानता था कि मैं खुदा हूँ, लेकिन उसने अपने खुदा होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया। मुशाबे होने से क्या मुराद है? देखने वालों को लगता था ये एक बढ़ई का बेटा है, ये इंसान है, लेकिन अलूहियत जानती थी और उसको जानते थे वो लोग जो रूह कुदस की रहनुमाई में थे कि ये खुदा का वो बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। और यीशु मसीह के वजूद से मैं और आप अब्दियत के वारिस बन सके। यीशु मसीह जलाली थे और वह जमीनी बने। उन्होंने गोश्त और खून को अपने जिस्म पर लिया इसलिए ताकि मैं और आप जलाली बन सके। वो दौलतमंद
हासिल कर सके। वो आसमानी था और वो जमीनी बन गया ताकि मुझे और आपको आसमान पर लेकर जा सके। वो लामहदूद खुदा था और वो महदूद हुआ ताकि मुझे और आपको जो हम महदूद हैं वो हमें लामहदूद जिंदगी दे सके। ये उसकी कुदरत है कि उसने अपने इस कलाम के वसीला से जिसको मुजस्सम होकर तजस्सुम के वसीला से मुझे और आपको एक नई जिंदगी बख्शी है। वो इब्ने खुदा था लेकिन वो इब्ने आदम बना, क्यों? ताकि मैं और आप इब्ने खुदा बन सके। वो आसमान का खालिक था लेकिन मखलूक बना ताकि हम खालिक के साथ अब्दियत के वारिस बन सके। और ये यीशु की साइंस में एक साइंसदान है, उनका नाम मेंडल्स है। उन्होंने एक कानून इंट्रोड्यूस करवाया, उसे कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। और उनके मुताबिक जो बच्चा पैदा होता है वो अपने अंदर ट्रेट्स रखता है, खसूसियात रखता है, कुछ अपनी माँ की और कुछ अपने बाप की। वो कहते हैं कि हर बच्चे के अंदर आधी खसूसियात अपनी माँ की होती हैं और आधी खसूसियात अपने बाप की होती हैं। समटाइम्स ज्यादा खसूसियत बाप की होती हैं, समटाइम्स ज्यादा माँ की होती हैं। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो माँ बाप से ही मिलती हैं। अगर यीशु इंसान से पैदा न होता तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, तो उसके अंदर खसूसियत किसकी होती है? खुदा की। और मैंने कहा खुदा अब्दी है। यीशु मसीह के बारे में यशायाह नबी लिखते हैं वो अब्दियत का बाप है, जो अब्दियत है वो उससे निकलती है। अब यीशु मसीह अब्दी था, वो मौत उसको छू भी नहीं सकती थी। यीशु मसीह कभी भी अपनी अलूहियत में रहकर हमारे गुनाहों का कफारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुदा से है, वो खुदा का बेटा है। मुकम्मल तौर पर खसूसियात किसकी हैं? खुदा की हैं। अगर यीशु मसीह जमीनी जोड़े से पैदा होते, एक इंसान, मुझके जो यीशु मसीह के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों इंसान होते, बाप भी और माँ भी, तो फिर यीशु मसीह में आपको पता है सबसे पहली खसूसियत क्या थी? मारूसी गुनाह, जो बाप के वसीला से, जो आदम की नस्ल होने के वसीला से उसके अंदर था। एक दफा पीके मूवी आई और उसमें उन्होंने कहा, उसको पादरी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता जीसस ने तुम्हारे लिए जान दी। कहता है 2000 साल पहले, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ, मैंने क्या किया कि वो मेरे लिए उसने गुनाहों का कफारा दिया। तो मेरे जीजो मैं आपको बात बता दूं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, पैदाइश के पहले आप चाहे तब बहुत पढ़े कि खुदा ने जिस जिस चीज को पैदा किया उसकी नस्ल का बीज उसके अंदर रखा। खुदा ने जिस फल को पैदा किया उसका बीज उसके अंदर था, उसकी आने वाली नस्लें उसके अंदर थी। जिस वक्त आदम ने गुनाह किया, जिस वक्त आदम ने नाफरमानी की, हम सब कहाँ थे? उसके अंदर थे, हम उसका सीड है। सो हमने उसमें होकर उस गुनाह को अपने अंदर रिसीव किया। तो हम सब आदम की नस्ल से हैं। तो जो गुनाह आदम ने किया वो हमारे अंदर भी है। हम मारूसी तौर पर गुनहगार हैं। जैसे बाप को शुगर होती है तो बेटे को भी शुगर होने के चांसेस होते हैं, माँ को कैंसर हो तो बच्चों को भी कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह गुनाह जिस तरह से आदम की जिंदगी में था, उसकी सारी नस्ल में भी वो गुनाह जाना था, करके गया। और फिर अगर यीशु मसीह के बारे में कोई भी उसने 2000 साल पहले मेरे गुनाहों का कफारा दिया, तो आज मैं कैसे रिसीव कर सकता हूँ? यकीन जाने आप बहुत सी बीमारियों के लिए वैक्सीनेशन लेते हैं, क्यों? ताकि मुझे ना हो। अभी आपको हुई नहीं लेकिन आपने मेडिसिन ली, क्यों? क्योंकि मुझे हो ना जाए। यीशु मसीह ने आपके लिए गुनाहों के कफारे की वैक्सीनेशन को कैलवरी पर क्रिएट की, ताकि जब भी कोई इंसान पैदा हो ईमान के वसीले से उसे कबूल करे और गुनाह की बीमारी से आजादी को जमीनी होते तब भी वो हमारे गुनाहों का कफारा नहीं कर सकता। तो अब क्या तीसरी कंडीशन जो खुदा ने मौजूदाती तौर पर क्रिएट की, और वो ये थी कि यीशु मसीह कामिल आसमानी बाप का बेटा था और वो एक जमीनी औरत से पैदा हुआ। और किस तरह से मुमकिन हुआ कि कलाम आता है फरिश्ता के जरिए से मरियम के पास, मरियम उस कलाम को कबूल करती है, अपने दिल में रखती है, वही कलाम रूल कुद्दस की मदद से जिस्म को पकड़ता है और यीशु मसीह का वजूद पैदा होता है। हालेलुया। सो ये है तजस्सुम, ये है कलाम का मुजस्सम होना। सो मरियम के कोख में जो बच्चा था वो खुदा का बेटा था। वो किसका बेटा था? खुदा का बेटा था। किसी स्कॉलर से पूछा गया कि यीशु कौन था, तो स्कॉलर ने कहा वो आसमानी बाप का जमीनी बेटा था, जमीनी माँ का आसमानी बेटा था। मेरी और आपकी निजात के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ खुदा नहीं, सिर्फ खुदा मेरी और आपकी निजात नहीं कर सकता था, और सिर्फ इंसान भी मेरी और आपकी निजात मुमकिन नहीं कर सकता था। ना ही आधा खुदा और आधा इंसान मेरी और आपकी निजात
निजात कर सकता था। सिर्फ कामिल खुदा और कामिल इंसान था जो मेरे और आपकी निजात कर सकता था। और आज को आपको मैं ये खुशखबरी फिर से बता दूं कि वो कामिल इंसान